ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ غریبوں اور مظلوموں کے حق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ جہیز کی لعنت ختم ہونی چاہیے۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ احیاء مجلس کے یوم تاسیس پر بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ احمد آباد کے بعد موڈاسا، بھروچ اور گودھرا میں مجلس نے لہرایا فتح کا پرچم۔ 16 نشستوں پر کامیابی۔ ریاست میں پارٹی کارکنوں کا جشن۔ گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ کے 35,000 مریضوں کا علاج۔ 1 سال کی تکمیل پر فرنٹ لائن واریئرز کی تہنیتی تقریب۔ وزیر صحت کا خطاب۔ بھوانی نگر میں 3 سالہ بچہ 3 منزلہ عمارت سے مشتبہ حالت میں گر کر فوت۔ چاچی کے ملوث ہونے کا شبہ۔ اور چنن گٹے میں بیوی نے شوہر کو جلا کر مار دیا۔ ڈالر کی تبدیلی کے بہانے توجہ ہٹا کر رقم چھیننے والی بین ریاستی ٹولی گرفتار۔ 2,80,000 روپے سے زائد کی نقد رقم اور امریکی ڈالر ضبط۔ سرخیاں آپ نے دیکھیے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غریبوں اور مظلوموں کے حق کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 63ویں یوم تاسیس کے موقع پر دارالسلام کے وسیع و عریض میدان میں خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بات کہی۔ اپنے خطاب میں صدر مجلس نے ملک کے سیاسی و سماجی مسائل کا جہاں احاطہ کیا، وہیں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ اور سابق صدور فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم اور ان کے رفقا کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ پارٹی قائدین و کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے غریبوں کی مدد لے رہا ہے۔ ہم کبھی غرور اور تکبر میں نہیں ہونے چاہیے۔ اخلاص سے رہو، متقی رہو، کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ غریبوں کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ ہمیں عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ کہ جو بھروسہ عوام نے ہم پر کیا، اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے۔ عوام کے بھروسے کو شرمندہ ہونے مت دیجیے۔ عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے، چاہے اسد الدین اویسی ہو یا مجلس کا کوئی رکن اسمبلی ہو یا رکن بلدیہ ہو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عوام نے ہم کو ووٹ اس لیے ڈالا اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لیے کیا کہ ہم غریبوں کی، عوام کی خدمت کریں، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ظلم کو روکیں، بلیک میل کو روکیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس دن کوئی مجلس کا رکن بلدیہ، رکن اسمبلی بشمول اسد الدین اویسی یہ سمجھے گا کہ میں بادشاہ ہوں، یاد رکھو اس وقت تمہارا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ جمہوریت میں، سیاست میں کوئی بادشاہ نہیں، ایک رکن اسمبلی ہے، ایک رکن بلدیہ ہے، ایک رکن پارلیمان ہے۔ یہ رب العالمین کا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کامیاب کرتا ہے۔ جس دن ہم انا کا شکار ہو جائیں گے، جس دن ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے، جس دن ہم عوام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، جس دن ہماری آنکھوں میں غریبوں کی محبت کم ہو جائے گی، جس دن ہماری آنکھوں میں غریب کی مضبوطی کم ہو جائے گی، یاد رکھو قدرت تم کو ختم کر دے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو۔ اخلاص رکھو،
मुत्तकी रहो, डरते रहो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने तुमको कामयाब किया। तुम्हारी दौलत ने तुमको कामयाब नहीं किया, तुम्हारी ताकत ने तुमको कामयाब नहीं किया, तुम्हारी शोला बयानी ने तुमको कामयाब नहीं किया। अरे तुम कामयाब होए तो अल्लाह की वजह से, तुम कामयाब होए इसलिए कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर लड़े थे, इसीलिए अल्लाह ने हमको मुझे कामयाब किया। जब तक ये बात को हम जिंदा रखेंगे, हमको कामयाबियां हमारे मुकद्दर में अल्लाह लिखता जाएगा। ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, तमाम को कह रहा हूं जो आज यहां पर मौजूद हैं, गरीब का साथ दो, जालिम का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो। और हमको कोशिश करना है, यकीनन इस राह में गलतियां भी हो सकती है, मगर जो गलती नेक नियति पर होती है उस गलती को मान सकते हैं, मगर जो गलती आंखें खुला रखकर, जो गलती देखकर होती है, जानकर होती है, वो गलती की माफी नहीं हो सकती। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो मालेर कोटला जाएंगे, पंजाब के किसानों से मुलाकात करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने दिल्ली के सरहदी इलाकों में एहतजाज के दौरान चल बसे किसानों के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए काम करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में सियासी दस्तक दी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मगरबी बंगाल तक ये सिलसिला चलेगा। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से उन तमाम 200 किसान जिनका इंतकाल हो गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मरने वाले किसान खानदानों के साथ खड़ी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन मरने वाले खानदान और परिवार को अल्लाह सब्र दे। हम इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कि किसानों की बात को मान लिया जाए। ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। ये कोई आसमान का सहीफा नहीं है कि आप इस कानून को वापस नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपसे हम कहना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, यकीनन आप गरीब खानदान से उठकर भारत के वजीर आजम बने, आपने गरीबी को देखा है अगर, तो आप इन किसानों की बात को मान लो। 200 किसान एहतजाज में अब तक मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, मैं सलाम करता हूं हरियाणा के किसानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को, मैं सलाम करता हूं राजस्थान के किसानों को, मैं पूरे भारत के किसानों को सलाम करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके मुतालिबात हक बजानिब हैं और सरकार को उनकी बात को सुनना है। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम लड़की आयशा की खुदकुशी के दिलसोज वाक़े पर बैरिस्टर ओवैसी ने सामाईन को झंझोड़ दिया और कहा कि जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए। औरतों पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। उन्होंने लड़कियों से मुखातिब होते हुए कहा कि मजलिस उनके साथ है, उन्हें डरना नहीं चाहिए और अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे। तुम लोगों को हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए।
کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنے عورتوں کو تم مارو گے؟ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا۔ اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ جو مسلمان ہیں، بتاؤ میرے کو ایک مثال دو کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو۔ تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے شرم سے ڈوب مرو۔ تم رسول اللہ کی امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو۔ ختم کرو یہ جہیز کو۔ کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی، دکن کی تاریخ بھری پڑی ہوئے محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر، تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ سوچو اس بات کو، ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے۔ بارث اویسی نے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کے حکومت کے قواعد کی مخالفت کی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسے فوری ہٹایا جائے، یہ ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے۔ بارث اویسی نے کہا کہ اگر وزیر اعظم مودی سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کے وشواس کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں دلی فسادات کے متاثرین کے لیے انصاف کو یقینی بنانا چاہیے۔ بارث اویسی نے کہا کہ ہمیں جمہوریت پر بھروسہ ہے، عدالت اور سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے۔ ہم جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کہ اس کو نکالیے، یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ آپ پرائیویسی کا ججمنٹ آ گیا، ڈیٹا کے رولز کیوں نہیں بناتے؟ آپ ڈیٹا کے رولز بنائیے نا۔ کچھ نہیں بنائیں گے آپ، نہیں کوئی، بس ہر چیز پہ جھانکنا، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی ڈالنا۔ بولتے ہیں حیدرآباد میں اپن، ارے کئی کو ڈال رہا، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی۔ ان کو بڑا شوق، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی۔ ان کا ہو رہا، تم کیا کر رہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے، کیا پہن رہے، کس سے شادی کر رہے، اس سے شادی مت کرو، اس سے کرو۔ ارے آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوتمیر کا کٹا ہی لے کے جا رہا ہوں، مگر وہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے؟ آپ کو فکر نہیں ہے دلی کے فسادات کے بارے میں؟ 1 سال ہو گیا دلی کے فسادات ہو کر۔ فیضان کو کس نے مارا؟ بھارت کے وزیر اعظم بتائیے، ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ فیضان کو، وہ بچہ جو 4 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی، اور جن گن من پڑھو۔ مسٹر مودی، فیضان کو کس نے مارا؟ فیضان کو مارنے والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو نہیں پکڑتے، وہ آرام سے پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ اگر حکومت واقعی میں سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس کی بات کرتی ہے تو بھارت کے پردھان منتری کو دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرنا پڑے گا۔ 52 لوگ مر گئے، جس میں سے 41 مسلمان تھے اور ماباقی ہمارے ہندو بھائی تھے۔ سب سے انصاف کرنا ہے۔ جنوسائیڈ ہوا وہاں پر، اب تک 1 سال ہوا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بارث اویسی نے عوام سے کووڈ کا ٹیکہ لینے کی بھی اپیل کی۔ اس جلسے سے معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے بھی خطاب کیا۔ دارالسلام کا وسیع میدان تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ ویکسین آیا ہے، ویکسین لیجئے۔ ویکسین لینا ہے، آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے، اس میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے لوگوں کو ہم نے کھو دیا، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ احمد پاشا قادری صاحب کو 2 مرتبہ کووڈ ہوا۔
मगर अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इम्तियाज जलील को कोविड हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बहुत से हमारे अराकीन बल्दिया को हो, अल्लाह ने उनकी शिफा दे दी। बाज मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान, उनकी मौत हो गई, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हमारे मुल्क में 1,70,000 से ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोविड वायरस से। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इंजेक्शन लगाइए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आए वो लगे तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। घर में इतने बातें सुनते, बीवी के जरा खाली चुमटी लिए तो कुछ नहीं होता, ले लो जाके, इंजेक्शन लेने का है, वायरस से बचना है। और पहले आप भी लो, अपने घर वालों को दिलाओ। खाली जाके बेगम के साथ ओ मैं ले लिया देखो, नहीं, अपनी बेटी को भी जो 20-22 जो बड़ी उम्र की है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, पहले बुजुर्गों को दिलाओ। जो 65 साल के ऊपर है पहले उनको दिलाना है, उनको पहले दिलाना है। लीजिए इंजेक्शन। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाइयों को और मजबूत करिए और अपने बुजुर्गों के जज्बे को जिंदा रखिए, इखलास के साथ काम करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 63वें यौम तासीस के मौके पर दारुस्सलाम में पार्टी परचम लहराया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का फलक शिगाफ नारों की गूंज में इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। मजलिसी अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। गुजरात के अहमदाबाद के बाद मोडासा, भड़ोच और गोधरा में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। 28 फरवरी को हुए इंतखाबात के वोटों की गिनती 2 मार्च को हुई, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यौम तासीस का भी दिन है। मोडासा में 9 मजलिसी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, भड़ोच में 1 और गोधरा में 6 सीटों पर मजलिस ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। वाज़ेह है कि गुजरात में मजलिस ने भारतीय ट्राइबल पार्टी नामी सियासी जमात से इत्तेहाद किया था और सिर्फ 20 दिन की मेहनत के शानदार नताइज हासिल हुए हैं, जो इस बात का इशारा है कि सारे मुल्क के कमजोरों, मजलूमों और मुसलमानों में मजलिस एक मजबूत मुतबादिल की हैसियत से अपनी पहचान बना रही है। गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर मुहिब्बान मजलिस की तरफ से जश्न मनाया गया। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में 1 साल के अंदर कोविड-19 के 35,000 मरीजों का इलाज किया गया है। कोविड-19 के 1 साल के मुकम्मल होने के सिलसिले में फ्रंटलाइन वॉरियर की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर राजेंद्र ने कहा कि पहला केस रवि तेजा नामी शख्स कोविड-19 मरीज को गांधी हॉस्पिटल लाया गया था। उसके बाद गांधी हॉस्पिटल को मुकम्मल कोविड इलाज के लिए मख्तस किया गया था। राजेंद्र ने बताया कि 900 से ज्यादा कोविड मरीजों की जजगी भी यहां पर की गई और 7,000 गुर्दे के मरीजों का इलाज किया गया। 1 साल में गांधी हॉस्पिटल का अमला जो खिदमात अंजाम दिया है वो काबिल सिताइश है। इसी तरह खिदमात को वो जारी रखा जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत को कोविड से निपटने के मामले में तेलंगाना हुकूमत पर सवाल खड़े हुए थे, इसके सारे जवाब देते हुए इसका जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि कुदरत के सामने इंसान कमजोर है, यह बात कोविड-19 ने साबित की है। कोविड-19 का इलाज करने वाले अछूत हो गए थे। गरीब आवाम को सरकारी हॉस्पिटल में हर तरह के इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। तेलंगाना में मुफ्त टीका मुहिम के दौरान मरकजी व मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में टीका लिया। इस मौके पर वजीर सेहत इटेला राजेंद्र भी मौजूद थे। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में 10,000 वैक्सीन सेंटर कायम किए गए हैं, बहुत जल्द इसे 20,000 किया जाएगा। खानगी हॉस्पिटल में 250 रुपए अदा करते हुए टीके लिए जा सकते हैं। रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खानगी हॉस्पिटल में टीका लिया। जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल में कोमटी रेड्डी ने टीका लिया। उन्होंने कहा कि अवाम के जहनों में टीके से मुताल्लिक जो शुबहात हैं उसे दूर करने के लिए टीका लिया है। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव अपनी अहलिया के हमरा MGM वरंगल हॉस्पिटल में कोविड-19 का टीका लिया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर गधवाल विजयलक्ष्मी ने निम्स हॉस्पिटल में कोविड का टीका लिया। उन्होंने कहा कि अवाम को अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लेना चाहिए। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए लोग आगे आ रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में एरिया हॉस्पिटल और जिले हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत में 10,000 का अमला वैक्सीन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मरकजी हुकूमत जिस तरह वैक्सीन फराहम करेगी उसी के मुताबिक वैक्सीन दिए जाएंगे।
नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक सिक्के के दो रुख हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इंतखाबात से पहले एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते हुए अवाम को गुमराह किया जाता है। तेलंगाना में 33% बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अब मुलाजमत फराहम करने के मसले को ही खत्म करने के लिए सरकारी इदारों को फरोग किया जा रहा है। जिस तरह SC, ST और दीगर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात से भी महरूम किया जा रहा है, इधर तेलंगाना में 1,90,000 जायदादें मकलूआ हैं। KCR के 2 लाख जायदादें देने का वादा किया था। KTR दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जायदादों पर तखर्रात किए गए हैं। बेरोजगारी से नौजवानों में मायूसी है और यह मायूसी मुल्क के लिए खतरा है। 2 साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। ये दोनों हुकूमतों ने नौजवानों को मायूस किया है और इन दोनों जमातों को कौंसिल के इंतखाबात में सबक सिखाने की जरूरत है। जंगली जानवरों से इंसानी जिंदगियों को होने वाले नुकसानात के इंसदाद और इस तरह के वाक़यात को कम करने हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है। इस खुसूस में हुक्मनामा MS 11 जारी किया गया है। जंगली जानवरों की शहरी आबादियों में पहुंचकर इंसानी जानों, मवेशियों व फसलों का इतलाफ, इमला की तबाही जैसे मसाइल का ये कमेटी जायजा लेगी और इन वाक़यात पर मुआवजे की अदायगी का तयन करेगी। वज़ीर जंगलात व माहौलियात इस कमेटी के सदरनशीन होंगे। अरकान में रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बरा जंगलात साबिक़ रुकन असम्बली अरविंद रेड्डी, वाइल्ड लाइफ फोरम के अनिल रेपोर्ट, हाईटेक्स के सेक्रेटरी इमरान सिद्दीकी, डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी रिटायर्ड डॉक्टर नवीन कुमार और दूसरे शामिल होंगे। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कमेटी के रुकन कन्वीनर होंगे। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के 163 नए केसेस दर्ज किए गए और एक मौत की तस्दीक की गई। रियासत में मुजमी केसेस की तादाद 2,99,086 तक पहुंच गई है। जुमला अमवात की तादाद 1,635 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,95,544 बताई गई। आज सुबह 157 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,907 बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 27, करीमनगर 7, मलकाजगिरी 13, रंगारेड्डी 12, पेद्दापल्ली 2, सिद्दीपेट 5, वरंगल अर्बन 7, वरंगल रूरल 1, भुंगीरी 4, संगारेड्डी 2, नलगोंडा 7, महबूबनगर 6, खम्मम 4, जगतियाल 7, मंचिरियाल 8, निजामाबाद 5, कामारेड्डी 3, जंगांव 2, निर्मल 0, वनपर्ती 3, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 3 और नागर कर्नूल में 4 केसेस दर्ज हुए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। छावनी नाद अली बेग के इलाके में 22 लाख रुपए की लागत से SW ड्रेन स्टॉर्म वाटर, CC रोड और 20 लाख रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन के काम किए जाएंगे। अहमद बलाला ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह मौजूदा लोहे के बरकी खंभों को सीमेंट के खंभों में तब्दील करें। सीमेंट के खंभों में अर्थिंग आने का इम्कान नहीं रहता है, जिससे इन खंभों के करीब से गुजरने वालों को कोई खतरा नहीं होता। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अहिया मजलिस के 63 साल पूरे होने पर मदीना चौराहा संगारेड्डी में मुकामी इब्तिदाई सदर मजलिस ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में मजलिस के नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद याकूब अली, फाजिल इरफान, मोहम्मद फैयाज और मोहम्मद एजाज साबिक़ रुकन बलदिया के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। गाजी बंडाता फतेह दरवाजा सड़क के मोड़ पर सीवरेज लाइन के काम में ताखीर अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। सड़क पर खुदवाई के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया। एक तरफ जहां ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई, वहीं एक ऑटो के भी उलटने की इत्तला मिली है। मुकामी अवाम ने बताया कि काम के मुकम्मल न होने और बरकी खंभों को न हटाने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। दुकानदारों ने भी बताया कि धूल गरज से माहौल आलूदा हो गया है।
अरबाब मजाज से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानात का मुआयना किया जा रहा है। जिन दुकानात पर गोश्त बगैर स्टैम्प का हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी जोनल कमिश्नर श्रीनिवास की क़यादत में शहर की कई गोश्त की दुकानात के मुआयने किए गए। चिंगीचिल्ला, स्लॉटर हाउस, अंबरपेट, भईगुड़ा वगैरह से स्टैंप लगाकर गोश्त जारी किया जाता है। बगैर स्टैंप वाला गोश्त गैर मजाज होता है। इसके खिलाफ वर्जी करने वालों से 8,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किए गए। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वो स्टैंप शुदा गोश्त की फरोख्त करें और सफाई का खास ख्याल रखें। उपल वरंगल चेहरा पर गैर मजाज तामीरात को बलदी हुक्काम की तरफ से मुनहदम कर दिया गया। मुतासिर ने बताया कि नोटिस के बगैर बलदी हुक्काम की तरफ से यह कार्रवाई की गई। उनका यह भी कहना था कि हमें मकानात से सामान निकालने की मोहलत भी नहीं मिली। इस मौके पर पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने रिंद बाजार पुलिस की शराक से तवज्जो हटाकर पैसे छीनने का अंजाम देने वाली बैन-रियासती टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक झारखंड के साकिनान अनिल शेख और शाहजहां शेख अपने साथी वहाब शेख के साथ मुख्तलिफ रियासतों में मजदूर का काम किया करते थे। यहां आकर उन्होंने एक टोली बनाई और अमरीकी डॉलर की तब्दीली की आड़ में धोखाधड़ी और लूट का मंसूबा बनाया। इब्तिदा में ये टोली मुंतखबा शहरों के स्लम इलाकों में कम किराए के कमरों में रहा करती थी। यहां से वो तिजारती इलाकों का जायजा लेते और फिर अपने निशाने का इंतखाब करते। ये टोली डॉलर को हिंदुस्तानी रुपये में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ अफराद से रुजू होती और ये कहती कि उनके पास 60,000 अमरीकी डॉलर हैं, उनके पास 5 लाख रुपए हैं और हिंदुस्तानी करेंसी उन्हें मजीद 4 लाख चाहिए। वो ये भी कहा करते कि इस शहर में हमें कोई नहीं पहचान था। मस्कुरा मुलजिमीन मुतासर अफराद को 20 अमरीकी डॉलर की असली नोट बताते और जब सामने वाले का उन पर भरोसा हो जाता तो उन्हें हिंदुस्तानी करेंसी लाने को कहते। जब मुतासरा लोग करेंसी लेकर आते तो वो एक बंडल में 2 या 3 अमरीकी डॉलर के नोट पैक करके हवाले करते और बंडल के नीचे साबुन रख दिया करते। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि वहाब शेख मफरूर बताया गया। पुलिस ने चोरी के कब्जे से 2,83,500 रुपए की नकद रकम और 200 अमरीकी डॉलर के अलावा दूसरा सामान जब्त किया है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के इलाके में नशे की आदी खातून ने अपने शौहर को मुबैना तौर पर पहले गला दबाया और फिर केरोसिन डालकर उसे जला दिया। तफसीलात के मुताबिक रेशमा और सोहेल भीख मांगा करते थे और दोनों फुटपाथ पर एक झोपड़ी बनाकर मुकीम थे। सोहेल की लाश झुलसी हुई उसकी झोपड़ी के पास पाई गई। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका पुलिस अहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। रेशमा उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि वो किसी के सवाल का मौसर तौर पर जवाब दे सके। सोहेल के गले पर निशानात पाए गए। चंद्रानगोटा पुलिस मसरूफ तहकीकात हैं। सड़कों और फुटपाथ पर नशे के आदी अफराद से राहरू अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साबिक में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जहां नशावर अफराद ने राहरू अवाम को निशाना बनाया। पुलिस को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुमारवाड़ी ईदी बाजार में 3 साला बच्चा मुश्तबा हालत में इमारत की 3री मंजिल से गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़ी नौमान सिद्दीकी की दादी और फुप्पू ने नौमान सिद्दीकी की मौत के लिए उसकी चाची आयशा को जिम्मेदार ठहराया है। तफसीलात के मुताबिक आयशा की शादी 3 साल पहले हुई थी। आयशा के ससुराल वालों ने इल्जाम लगा कि इससे पहले भी आयशा ने नौमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और आयशा के अफराद खानदान की तरफ से भी उन्हें कई बार हरासा किया गया। मुतवफ़ी लड़के की दादी ने बताया कि आयशा नौमान को ऊपर ले गई थी और फिर पड़ोसियों की तरफ से चीख पुकार सुनी गई कि बच्चे को नीचे फेंका जा रहा है। जब बच्चा नीचे गिर गया, पड़ोसियों ने आकर इत्तला दी। कमसिन नौमान इलाज के दौरान जान पर न हो सका। नौमान के अफराद खानदान ने आयशा और उसके घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आयशा को तहवील में ले लिया गया है। भवानी नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बंजारा हिल्स के जौहर नगर में वाक़ स्कूल में सरक़े का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिराक रे इंटरनेशनल स्कूल में सारकों ने कफल चिकनी के जरिए प्रोजेक्टर, पंखे, माइक और म्यूजिक सिस्टम के अलावा दूसरे सामान का सरखा कर लिया। स्कूल के जिम्मेदार नागाराजू की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बंजारा हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
सईदाबाद पुलिस हदूद के इलाके केशव नगर में रहजन खातून के गले से तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून दोपहर के वक्त में केशव नगर चौराहे से पैदल जा रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार रहजनों ने 3 तोले की तिलाई चेन छीनी और फरारी अख्तियार की। सईदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों की तलाश की जा रही है। जुबली हिल्स के पब में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प का वाकया पेश आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पब में पैर लगने से 2 ग्रुपों में बहस व तकरार हो गई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रंगारेड्डी जिले याचारा मंडल के नागार्जुना सागर शाहरा पर हुए सड़क हादसे में लारी ने दूध की वैन को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। लारी में भुट्टे लदे हुए थे, जबकि मुतासरा दूध की गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया। मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गरीबों और मजलूमों के हक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए। किसानों के साथ खड़े हैं। मजलिस के यौम तासीस पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। अहमदाबाद के बाद मुदासा, भड़ोच और गोधरा में मजलिस ने लहराया फतेह का परचम। 16 नशिस्तों पर कामयाबी। रियासत में पार्टी कारकुनों का जश्न। गांधी हॉस्पिटल में कोविड के 35,000 मरीजों का इलाज। 1 साल की तकमील पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तहनीती तकरीब। वजीर सेहत का खिताब। भवानी नगर में 3 साला बच्चा 3 मंजिला इमारत से मुश्तबा हालत में गिरकर फौत। चाची के मुलविस होने का शुबा। चंद्रानगोट्टे में बीवी ने शौहर को जलाकर मार दिया। और डॉलर की तब्दीली के बहाने तवज्जो हटाकर रकम छीनने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 2,80,000 रुपए से ज्यादा की नकद रकम और अमरीकी डॉलर जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।